Okay, a very good morning to all the students. I hope everyone is having a great time at home. And as you're already aware, in the last class, we have already finished Geography Chapter 1. So I'll be sending you the extra notes today about Geography Chapter 1. And I'll be sending you the exercise question and answer. And regarding about the civic exercise answers, I'll be sending you if possible today. So today we'll be dealing with a new chapter because we have to carry on, because you know that our syllabus is very fast. No option, we have to continue with the class every day. So please bear with me. So we'll be starting the new chapter, that is agriculture, one of the most important chapter in geography. This is your second chapter. This is one of the most important chapter in geography. Okay. In this chapter, we are going to see about the different types of farming. What are the major crops of India? We are going to see, and we are going to see about the technological role in the development of agriculture. So many topics we are going to deal under this. So we'll be starting the introduction today. Let's start. India is an agriculturally important country. हम लोग को मालूम है कि हम लोगों का देश जो है इंडिया वो बहुत एग्रीकल्चर पर निर्भर है. More than half of the population of our country depend on agriculture for their livelihood, for their source of income. हम लोगों को मालूम है हम लोगों का देश का आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर है और अपना सोर्स ऑफ इनकम सब कुछ वो एग्रीकल्चर पर निर्भर होता है. तो इसीलिए एग्रीकल्चरली हम लोगों का देश बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है. देन 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. As I have already told you, 2/3 हम लोगों का population वो engage है agriculture activities पर, वो dependent. 2/3 population of our country is engaged in agriculture. That means 2/3 population India का agriculture activities में निर्भर है. Then agriculture is a primary activity, and we all know that agriculture एक primary activity माना जाता है. तो economics में हम लोग 3 sector means study किया जाता है. One is this primary sector or agriculture sector, and 2 that is secondary or manufacturing sector, and 3 service sector or tertiary sector माना जाता है. तो agriculture को एक primary activity माना जाता है, which produce most of the food that we consume. और ये primary activity से ज़्यादातर हम लोग जो खाते हैं, जो consume करता है, वो ज़्यादातर primary activity से supply होता है. Then beside food grains, it also produce raw material for various industry. तो सिर्फ food grains अकेला नहीं, सिर्फ consume करने के लिए नहीं. Beside this, ये primary activities है agriculture जो sector है वो raw material भी बहुत produce करता है, means industry के लिए, जैसे कि indigo, cotton. These are the examples which produce as a raw materials for various industries. Can you name some industries based on agricultural raw materials? ये आप लोग पर छोड़ देता है. जो means at least can you name industry जो raw materials लेता है primary activities से. जैसे कि मैंने example बताया cotton, we can take textile industry which take raw materials from the primary activities. Then moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. So some agricultural activities या products like tea, coffee और spices हम लोग export करता है, because India is not one of the leading producer of tea in the world. और कॉफ़ी भी होता है इंडिया में, और स्पाइसेस में तो बहुत रिच है हम लोगों का कंट्री, एंड वन ऑफ द मेन सप्लायर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड माना जाता है इंडिया को. तो हम लोग बहुत एक्सपोर्ट करता है ये थिंग्स को. देन बिफोर गोइंग टू दैट विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग टुडे. तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग
एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। तो एग्रीकल्चर जो है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज है या एग्रीकल्चर जो है वो बहुत पुराना इकोनॉमिक एक्टिविटी है हम लोगों का देश का। बहुत वर्षों से सिविलाइजेशन से यह एग्रीकल्चर एक्टिविटी चले आ रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इसलिए एज ओल्ड एक्टिविटी है, ये बहुत पुराना एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है एग्रीकल्चर को। देन ओवर these years cultivation method have changed significantly depending on the characteristic of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices। तो ओवर दिस ईयर्स, तो जैसे ईयर्स बढ़ते गए, जैसे ईयर्स आगे बढ़ते गए, कल्टीवेशन मेथड पूरी तरह से चेंज होने लगा है। जैसा कि पहले हम लोग ऑल मीन्स सिंपल टूल से मीन्स फार्मिंग करता था, लेकिन अभी जैसा वक्त बदलते गया है पूरी तरह से चेंज हो गया है और कल्टीवेशन में अलग अलग मेथड हम लोग यूज करने लगा है और ये डिपेंड होता है ऑन द, और हम लोगों का कल्टीवेशन अभी डिपेंड होता है ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट में भी डिपेंड होता है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट में डिपेंड होता है हम लोगों का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स कैसा वातावरण है उस पर डिपेंड होता है। द सॉलिड थिंग्स विच इज फाउंड इन द इन्वायरमेंट, इसको फिजिकल इन्वायरमेंट बोला जाता है, तो उस पर भी निर्भर होता है। एंड टेक्नोलॉजी पर बहुत सारा निर्भर होता है। टेक्नोलॉजी अगर अच्छा नहीं है तो हम लोग अच्छी तरह से फार्मिंग नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ड्रास्टिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैव चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स बहुत चेंज हो गया है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मेथड चेंज है सिग्निफिकेंटली डिपेंड होता है ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी पे निर्भर होता है एंड सोशो कल्चरल प्रैक्टिस पर निर्भर होता है। सोशो कल्चरल प्रैक्टिस और हम लोग कैसा प्रैक्टिस करता है हम लोगों का, ये मीन्स लैंड यूज का, उस पर निर्भर होता है। देन फार्मिंग varies from sustenance to commercial type। तो फार्मिंग varies means differentiate होता है from sustenance। sustenance means only हम लोगों का परिवार के लिए, मार्केट में नहीं बेचने के लिए, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खाएंगे, ऐसा उसको बोलता है सस्टेनेंस फार्मिंग। और अभी फार्मिंग चेंज हो चुका है फ्रॉम सस्टेनेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। तो पहले हम लोग सिर्फ सस्टेनेंस फार्मिंग किया करते थे, मीन्स सिर्फ हम लोगों का परिवार के लिए, मीन्स खाने के लिए हम लोग मीन्स खेत किया करते थे, लेकिन अभी तो कमर्शियल के लिए भी किया जाता है। तो ऐसा फार्मिंग भी चेंज हो चुका है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस। तो एट प्रेजेंट अलग अलग पार्ट में, इंडिया में अलग अलग एरिया में, जगह में अलग टाइप का फार्मिंग प्रैक्टिस होता है अभी भी। कुछ जगह में बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गया है, इसीलिए वहाँ अच्छी तरह से फार्मिंग करता है, और कुछ जगह में अभी भी टेक्नोलॉजी इतना अच्छी तरह से पहुँच नहीं पाया है, इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस करता है हम लोगों का कंट्री में इन डिफरेंट रीजन्स। So first we are going to see about types of farming is primitive sustenance farming। All method of farming इसको माना जाता है। So today I'll be just giving you introduction only। तो हम लोग कल से डील करेंगे। 3 types of farming होता है, एक है primitive sustenance farming, one is intensive sustenance farming and one is commercial farming। तो हम लोग इसको कल डील करेंगे। एंड टुडे विल डील टिल अप टू दिस मच, जस्ट इंट्रोडक्शन है आज। सो थैंक यू।